slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything?
हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट दंगे फसाद ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग वो सिर्फ हम लोगों पे वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम लीग कोई, तो उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट दंगे फसाद ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग वो सिर्फ हम लोगों पे वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में
देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार, क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना एग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें, अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार, क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना एग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें, अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा।
हम सब एक हैं। मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके। क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है। उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है उनके घरों में। देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना एग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मारपीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें, अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके। क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है। उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है उनके घरों में। देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट दंगे फसाद ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों? क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम ने कोई, तो उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों? क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट दंगे फसाद ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों? क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता
अपना बलिदान देती है। उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम लोग कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार, क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें, अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम लोग कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार, क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें, अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं
मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके। क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्चियाँ, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया। या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए, मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस, मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा। क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियां इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मारपीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें, अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके। क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्चियाँ, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया। या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए, मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस, मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा। क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियां इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मारपीट, दंगे फसाद, ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम लीग कोई, तो उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मारपीट, दंगे फसाद, ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों
क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है। उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है। उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी
तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके। क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है। उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया। या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए, मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा। क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मारपीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें, अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके। क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है। उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया। या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए, मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा। क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक
कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मारपीट, दंगे फसाद, ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग वो सिर्फ हम लोगों पे वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम लीग कोई, तो उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मारपीट, दंगे फसाद, ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग वो सिर्फ हम लोगों पे वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है?
क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है। उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट, दंगे फसाद, ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके? क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है। उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया, या उन्होंने उनके कोई फेस्टिवल आए मुस्लिम ने कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को इतना अग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मार पीट, दंगे फसाद, ये सब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें अगर जनता
एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके। क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है। उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया। या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए, मुस्लिम लोग कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा। क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो बनाना है। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकती हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ आपके पास में। शायद वो किसी को अच्छा लगे और किसी को ना लगे, बट मेरा दिल जो कहता है वो मैं कहना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स वालों ने क्या जनता को मतलब इतना एग्रेसिव कर दिया है कि जनता जातिवाद को लेके मारपीट, दंगे फसाद, ये सब मतलब क्यों? क्योंकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि हम सब एक हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हमें, अगर जनता एक रहेगी तो कभी हिंदू नहीं मरेगा, ना कभी कोई मुसलमान मरेगा। हम सब एक हैं। मतलब हम ऊपर वाले के बनाए सब एक ही तो है। बस ये जो सामाजिक तत्वों ने हमें दे दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बट पता नहीं क्यों ये जनता नहीं समझना चाहती है कि हम सब एक हैं। क्यों जनता इतनी उत्तेजित हो जाती है पॉलिटिक्स में आके। क्यों वो ये समझ नहीं पाती कि जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो सिर्फ हम लोगों पे, मतलब वो बातें हम लोगों पे हावी होती हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखा आपने कि मासूम बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनके शव मिल रहे हैं। उन्होंने मतलब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो जानते ही नहीं कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या सिख होता है, क्या ईसाई होता है। फिर ऐसे मतलब इन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है। उस समय ये पॉलिटिक्स कहाँ जाता है? क्यों क्यों पॉलिटिक्स में ये जनता अपना बलिदान देती है? उनके घरों में देखा किसी ने कि अगर होली पे किसी ने रंग डाल दिया तो वहाँ पे उसको मार दिया। या उन्होंने मतलब उनके कोई फेस्टिवल आए, मुस्लिम लोग कोई, तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं ने मार। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों क्यों अब ऐसा हो रहा है? तो मैं बस मेरा दिल था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये समझे, सब समझदार बन जाएं, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इस देश के अंदर। हम सुख शांति से रहे, अमन हो, चैन हो, अमन, एक सुकून हो जो पहले था। बस यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, आप लोग इस मुद्दे को समझिएगा। क्योंकि हम सबकी बेटियाँ, हम भी बेटी हैं, हम सबकी बेटियाँ इस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा चढ़ रही हैं। आई होप
आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट।